I welcome you to all to this book discussion series Gyanpath, which is organized by Janapada Sampada division. And today we are going to have a book discussion on the book entitled Madan Mohan, an Enchanting Saga. The book actually talks about various aspects of the temple. Being an architect in training, as I have done the masters in conservation, I have dealt with the architecture of the temple. But apart from that, there were other unknown, or I would say unattended aspects of the temple which were never ever dealt, like the visual history, the paintings, the poetry, the traveler's account, the folklores. So everything came into the picture to deal with this temple. And suddenly, when the work culminated in the last 12 chapters, I saw that the temple was not only a manifestation of a space which came during a political period in India where Akbar was ruling. It was more beyond that. We will see how it was. Before going to Madan Mohan, I should be, talking in brief about this book, which was published by IGNCA. And it was published in 95 or 96. I think I was hardly 3 or 5 years old at that point of time. And this book is very, very special in my life, because आज मैं जो भी हूँ, मेरे मदन मोहन जी तक के सफ़र में गोविंद देव जी का और इस किताब का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है. जनपद संपदा जिस समय पर मौली कौशल मैम के हाथ में था, ये उस टाइम पब्लिकेशन आया. एंड श्रीवत्स गोस्वामी जी, who is actually the one of the members of the same Radharaman Parivar from where I belong, was the project director. There was a project called Vraj Nathdwara Prakalp. In that Prakalp, this book was published. And this book has articles of almost all the topmost scholars India had at that point of time, including Nalini Thakur, under whom tutelage I was taught. I have learned documentation, architectural documentation in SP Delhi. And she was the inspiration who said in the first semester कि सुशांत, Braj को नहीं छोड़ना है. Somewhere down the line, Braj has to be introduced in the scholarship again and again. So I'm thankful that this book, from where it was published, I am discussing the book in the same arena again. This is another photograph of the temple. थोड़ा सा I'm giving you the visual treat to you to understand what temple is, how this temple looks. And just to give a brief introduction, most of the people know what Braj is, and Braj शब्द आपने कई बार सुना होगा. तो ब्रज शब्द की अलग व्याख्याएं हैं, बट जो ब्रज रीजन है बेसिकली, अगर आप मैप में देखें तो इन मिडीवल पीरियड, जिसको हम 15वीं 16वीं शताब्दी का जो हम समय कालखंड कहते हैं, उसमें दिल्ली और आगरा, जो कि दो प्रमुख मुगल शहर हैं, उसके बीच में कहीं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, सैंडविच हो रखे हैं वो क्षेत्र. और जैसा कि हम जानते हैं, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण के अंदर जो हमको उल्लेख मिलते हैं, कृष्ण की रासस्थली रही है, उनकी क्रीड़ा स्थली रही है, उनका जन्म यहाँ पे हुआ है. और जब तक वो कंस को मार के बाहर नहीं चले जाते, तब तक 12-13 साल तक की अवस्था में भगवान इस क्षेत्र में रहते हैं. और राधा से जो उनका जो हमें अलग अलग जो हमें उल्लेख मिलते हैं शास्त्रों में, वो भी प्राय सबको ज्ञात ही है. आपके सामने दो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं 16th सेंचुरी के, जिसके पैर के पास यू कैन सी लायन एंड शीप, दैट इज़ अकबर, एंड अदर वन इज़ मान सिंह. ये जोड़ी ब्रज के लिए बड़ी कामगार सिद्ध होती है, क्योंकि अब आप उसको पॉलिटिकली कह लीजिए, ये साम दाम दंड भेद कुछ भी कह लीजिए, पर इस जोड़ी के आने के बाद एक कह लीजिए कि एक क्रांति की लहर आती है ब्रज के अंदर. और यहाँ से शुरू होता है सिलसिला एक ऐसे मंदिर निर्माण का जो कि कम से कम 7-8 मंदिरों पर जाके रुकता है. और इसके बाद होता यह है कि उत्तर भारत का तराइन का युद्ध, विच वॉज फॉट इन 1191-1192 CE, आफ्टर दैट वी डोंट सी एनी मेजर टेम्पल कंस्ट्रक्शन हैपनिंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. एंड दिस इज द फर्स्ट टेम्पल विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन 1590 CE in Vrindavan itself, under the sponsorship of Akbar. When I say sponsorship, obviously the money is required, but money से ज़्यादा what is required? It is the material. You will be shocked to know that the sandstone from which the Govind Dev temple was built was quarried from the same site जहाँ से फतेहपुर सीकरी के लिए भी पत्थर निकाले गए. So this was the first time in the history where Akbar allowed issuing the stone for a non-Mughal structure. When I say non-Mughal, which means it was not for a royal Mughal use. It was a temple again. And it was not the only one temple which came in that region.
We have few more coming, and also Madan Mohan is one important temple in this aspect. But what you see is that her temple ka, the architectural spaces and orientation is somewhat different from one another. And there are reasons why it is happening. And that's how my book, comes into the picture. थोड़ा सा और मैंने पॉलिटिकल आपको एक ब्रीफ दे दिया, थोड़ा सा रिलीजियस स्पिरिचुअल मैं आपको बैकग्राउंड भी दे दूँ इस रीजन का. 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, और उसी बीच में वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन कमिंग इनटू द लैंडस्केप विच इज चैतन्य महाप्रभु. इन 1515 CE when Lodhis are ruling Delhi, Chaitanya Mahaprabhu arrives here, he does his Braj Yatra, he travels, he again go back, and going back to Puri, what he says, he commands his disciple to go and settle in Braj, live in Braj, and rediscover the places which have lost in time. When I say lost, which means somehow there was a gap of habitation, people were not staying there, it became a forest, and he wanted that it should be again revived. That's how, Chaitanya Mahaprabhu comes into the place. And one of his disciples was Sanatana Goswami, who was the senior most of his 6 premium disciples. And mostly each of his disciples had his, a private deity to worship. And Madan Mohan ji was his deity altogether, which he actually got accidentally as a bhiksha from Mathura. And mind it, all these deities were not caring for Bengal. They had no idea what they will be doing in Bengal. They introduced or discovered or rediscovered the deities in Braj itself, somehow, one or the other. So that's how Madan Mohan comes into the picture. Now when he brings Madan Mohan from Mathura, he is living on this particular mount which you saw in the first slide altogether. And there is a very interesting story, a folklore, which I would say, now it's a historical fact because I have proved that it as a historical fact. But पहले वो एक किंवदंती या लोक कथा के रूप में था. तो कहानी ऐसी है कि जब आप भिक्षा करने सनातन गोस्वामी मथुरा जाया करते थे तो वो चून आटा लाया करते थे और उस आटे से 4 बाटी बनाते थे. एक बाटी यमुना जी की, एक बाटी गौग्रास की गाय के लिए, एक बाटी खुद के लिए और एक बाटी मदन मोहन जी के लिए. तो ये सिलसिला चलता रहा. एक दिन मदन मोहन जी ने कहा कि बहुत सूखी है बाटी तुम्हारी, गले से नीचे उतर नहीं पाती है, तो थोड़ा नमक मिलेगा क्या? तो सनातन गोस्वामी वतन डिलेमा की बोल रहे आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे. दैट्स हाउ द स्टोरी इज एक्चुअली मतलब ऐसे बताते हैं लोग ब्रज के अंदर. ये कहानी का तो यही प्रकार है. तो मदन मोहन ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं तो हूँ एक संत बाबा जी आदमी हूँ, आज आप नमक में कह रहे हो, कल आप घी कहोगे, तो ऐसा है मेरे सामर्थ्य में तो नहीं है. बेहतर है कि आप सर्वशक्तिमान हो, आपके कहने से एक पत्ता भी नहीं हिले, तो आप खुद अपनी व्यवस्था कर लीजिए. और कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है. कहानी में ये होता है कि मदन मोहन एक बच्चे के भेष के रूप में उस टीले से नीचे उतरते हैं जिसके बगल में यमुना बह रही होती है, और वहाँ से एक नदी एक मुल्तान का व्यापारी नमक लेके निकल रहा होता है. और कहानी ये आती है कि भगवान और उसकी नाव फंस जाती है वहाँ पर. देखिए नमक, मुल्तान, इतनी सारी चीज़ें आ रही बीच में, और भगवान कहते हैं कि उसके ऊपर, वो टीले के ऊपर एक देवता रहता है, तुम मनौती मांगो तुम्हारी नाव छूट जाएगी. तो तुम आगरे में इसको बेच कर जो मुनाफा कमाओगे उससे मेरा मंदिर बनवाना. तो कहता ठीक है, नाव छूट जाती है, उस यमुना किनारे के रास्ते से वो आगरा पहुंचता है, वापस आता है, मुनाफे से मंदिर बनाता है. ये होगी पूरी कहानी. जब मैं इस किताब को डील कर रहा था, व्हेन आई वाज डीलिंग दिस बुक, नाउ द पॉइंट वाज कि ये कितनी किंवदंती है और कितनी हिस्टोरिसिटी है इसके अंदर, थोड़ा वो भी देख लिया जाए. बिकॉज वेस्टर्न स्कॉलरशिप तो पूरी तरीके से फोकलोर को नकार देती है. तो जो अभी करंट जो एक इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का और जो हमारे जो बोलते हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक नई लहर दौड़ रही है 10 सालों में, सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा गोते मारा जाए इसके अंदर. तो कहानी शुरू करनी थी एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप पे कि क्या क्या काम हो रखा है. वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम स्कॉलरशिप को मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट कह के नकार देते हैं. ठीक है, यू कैन हैव दैट परसेप्शन टू अ सर्टन नेम्स, बट कुछ चीज़ें फैक्ट्स होती हैं जिसमें राइटिस्ट, मार्क्सिस्ट ऊपर नहीं आता, वो फैक्ट है. आई हैड टू गो टू इरफान हबीब, a very prominent name when you are dealing with the scholarship of Braj region, at least in medieval era. He has done a very good work called Mughal Atlas of India. It's a very good book, a thick book, and it deals with that particular subject. You can see on the first map, you can see 3 dots, and you can see Lahore in the first dot uppermost, Delhi and Agra. You have the Kabul Suba, and the limits are Kabul Suba, Kandahar Suba, Ajmer Suba, Lahore Suba. So basically अकबर के टाइम पीरियड में द इंडियन पार्ट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू सूबास, 16 सूबा के अंदर में. तो ये 3 सूबे हमारे पिक्चर में आते हैं.
और जो आप नेक्स्ट स्लाइड में, व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ, यू कैन सी अनदर रेड डॉट विच इज एक्चुअली लाहौर, एंड यू कैन सी अ वेरी बिग blue circle over there. That blue circle is actually world's largest salt mine, which today is known by the name called Khewra salt mine. ये इसकी करंट पिक्चर है, बट इससे पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं यहाँ तक भी कैसे पहुँचा कि मेरे को कहानी लाहौर से शुरू करनी है. हुआ ये कि आई हैव टू गो एंड कुक समटाइम्स एट माई होम, और मेरी मम्मी ने कहा कि आज खाना तुम्हें बनाना, हमारे घर में टाटा नमक इस्तेमाल नहीं होता, सीधा नमक इस्तेमाल होता है. तो वो जो पैकेट था, उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था नमक लाहौरी, और उस नमक लाहौरी के चक्कर में मैं यहाँ तक पहुँच पाया टू दिस माइंस. एंड दिस माइंस वर एक्चुअली डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली when army of Alexander was approaching the Indian subcontinent. They halted at this mountain, which is actually a salt. और what happened was, जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी जुड़े होंगे उनको पता होगा कि गाय और घोड़ों को नमक दिया जाता है ताकि उनका पेट ठीक रहे. तो उतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करे, घोड़े थक गए थे, बीमार पड़ गए थे. जैसे ही उस पूरी फौज, घोड़ों ने जब पहाड़ चाटना शुरू किया तो उनकी तबीयत तंदुरुस्त हो गई. तो देन अलेक्जेंडर थॉट कि भाई ये पहाड़ में क्या है. तो इट वॉज अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ दिस सॉल्ट माइन. जब तक इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तब तक यहाँ से एक बहुत बड़ा सेंधा नमक का खेप जो है वो उत्तर भारत कवर करता था. एंड इफ़ यू जस्ट मैप दी ग्रैंड ट्रंक रोड ऑल दी वे फ्रॉम लाहौर टू एटलीस्ट आई वुड से दिल्ली एंड आगरा, आपको बाजार नमक मंडी या मोहल्ला नमक मंडी करके बहुत सारी जगह मिल जाएंगी. अमृतसर में, जालंधर में, सिरहिंद में, दिल्ली में, आगरे में आपको ये मोहल्ला हर बार दिखेगा. तो कुछ ना कुछ तो नमक का रोल रहा होगा इम्पॉर्टेंट, और भगवान खुद नमक मांग रहे हैं. सो इतनी हिस्टोरिसिटी कवर हो गई, नमक का एक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया. नाउ कम्स द होल ट्रेड रूट, वो क्या चल रहा है. सो एक्चुअली द रूट गोज ऑल द वे अवे फ्रॉम पेशावर, बट यू कैन सी फ्रॉम पेशावर इट इज़ कमिंग टू दी सॉल्ट माइन से होते हुए इट इज़ कमिंग टू लाहौर, देन अमृतसर, देन सिरहिंद, देन दिल्ली, वृंदावन और आगरा. What is the twist in the story is कि from Delhi to Agra that route is not via land, it is through the river. That is the twist in the story. And the merchant who is coming, as you remember the story, was from Multan. Multan you can see over there. Now someone can easily think or ask this question कि यार वो मुल्तान से लाहौर क्यों जा रहा है, उतना सीधा रास्ता काट दे बीच में से. The reason is कि बीच में what you can see is the great Indian Thar desert. इफ़ यू गो बाय दैट, आप जिंदा तो वहाँ तक नहीं पहुँचने वाले, हो सकता है आपकी डेड बॉडी ज़रूर पहुँचे दिल्ली तक. दैट वाज द रूट. सो दैट पर्टिकुलर खत्री व्यापारी हुज नेम इज़ रामदास कपूर इज़ एक्चुअली फ्रॉम मुल्तान इज़ गोइंग टू लाहौर एंड गेटिंग द सॉल्ट फ्रॉम खेवरा सॉल्ट माइन टू लाहौर, और वहाँ से देन ही इज़ टेकिंग, मोस्ट प्रॉब्ली ही इज़ टेकिंग दिस रूट कमिंग टू दिल्ली, और दिल्ली से ही इज़ टेकिंग द बोट एंड कमिंग ऑल द वे टू आगरा. एंड दिस इज़ नॉट, obviously I cannot make a claim, but as per the studies and whatever records we have, this is the basic structure of economics happening in the Mughal period at that point of time. तो ये तो नमक, और हमने मदन मोहन जी के नमक की ख्वाहिश पूरी कर दी. Now coming back to the temple again, this is the map of Vrindavan. You can see this, geography being made, a crescent shape, geography. This you will also find in Varanasi, and I think most of the temple towns in India have this geography because it is considered to be auspicious. I have not till date got evidence that why it is considered auspicious, but अलग अलग थ्योरी है. काशी में जैसे कि चंद्राकार है तो भगवान के सर पे चंद्र है, अर्धचंद्र है. अब यहाँ तो चंद्रमा है नहीं because it is Krishna, so why it is becoming important I don't know. I have still not got the answer. But anyways, the red spot what you can see is actually the location of Madan Mohan, and at least 500 years ago Yamuna used to cross right adjacent to Madan Mohan temple, which is you can see थोड़ा बहुत shift हो चुका है वहाँ से. And here you can see the Madan Mohan temple. So you can see a road which is going. That road is actually on the floodplains of river Yamuna. यमुना कभी वहाँ से निकला करती थी. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग है. मतलब मैं, इफ पीपल थिंक कि मैं कुछ हवाई बातें कर रहा हूँ, यू हैव द एविडेंस एटलीस्ट फ्रॉम 1790, जब यमुना बिल्कुल बगल से बह रही है उस मंदिर के. और आज यहाँ पर आपको शोर शराबा, पी पा पू, जो भी आप उसको साउंड वेरिएशंस डाल लीजिए वो आपको दिखेंगे. देख ली 300 साल में कितनी ज्योग्राफी बदल चुकी है इस जगह की. अब थोड़ा सा मतलब चैलेंजेस पे आते हैं. अब पीपल से कि पीपल हैव नॉट वर्क, पीपल हैव नॉट फोकस्ड, समहाउ पीपल हैव नॉट पेड अटेंशन. ठीक है, नहीं किया, पर
सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात हो तो ज़्यादा बढ़िया है. नहीं किया ठीक है, उसके बाद आगे क्या. द मैप वॉट यू आर सीइंग ऑन द एक्सट्रीम एंड टेम्पल ऑफ मदन मोहन वेर यू कैन सी टाइटल वॉज डन बाय फ्रेडरिक सॉलमन ग्राउस हु वॉज द कलेक्टर ऑफ मथुरा इन 1870. द अदर मैप इज मेड बाय मी. From 1870 till 2024, no one even took a initiative to make a map of that temple. Forget about the scholarship. 150-2 साल में तो मैं मदन मोहन जी की कृपा से प्रकट हुआ to document that temple somehow, and I did that. And also thanks to the map made by Frederick Solomon Grouse, because there are a lot of limitation that map has. You can see the site is a bit restricted in that map. Now the site has changed a lot. A number of things have been added over there. This is the current scenario. If you can see, there are two different temples. The one you can see in the longer form was the ancient most temple, which is considered to be built by that merchant जो मुल्तान से आया था. और जो दूसरा मंदिर है जो आप बड़ा वाला और देख पा रहे हैं शिखर, that was built post गोविंद देव, which means any time about 1590 CE. और the another tower what you can see on the extreme end is basically the gateway. इस तरफ से, बिकॉज उस तरफ तो पानी है तो यू कैनॉट एंटर द कॉम्प्लेक्स, तो आपको घुसने के लिए इधर से आना पड़ेगा. बट समय की मार ऐसी हो चुकी है कि ये गेट अब हो चुका है बंद, वहाँ आ चुकी है रोड, और जो कभी एंट्रेंस था नहीं वो मेन एंट्रेंस बन चुका है. दीज आर द बेसिक्स फॉर्म्स ऑफ टेम्पल्स वॉट यू विल फाइंड रीडिंग द बुक्स ऑफ स्टेला कैम्ब्रिज और एडम हार्डी. सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायरिश, एलिप्टिकल, दीज आर द फॉर्म्स. बट मदन मोहन हैज़ ए ऑक्टागोनल शेप, मतलब विच इज़ एक्चुअली ऑफ शूट ऑफ अ सर्कुलर. मतलब सर्कुलर डिज़ाइन को थोड़ा सा अगर आप और एनहांस करेंगे तो आपको ऑक्टागोनल फॉर्म मिलेगा ना. द क्वेश्चन कम्स कि ऑक्टागोनल फॉर्म ही क्यों लिया, लेने वाले ने रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया, स्क्वायर क्यों नहीं लिया. दिस क्वेश्चन केम, एंड दिस क्वेश्चन वॉज एक्चुअली हाईलाइटेड बाय वन ऑफ द very good art historians who actually teaches in University of Michigan, Nachiket Chanchani. I was having a discussion with him because at times what happens when you're writing a book, आप एक saturation में पहुंच जाते हो, आपको एक बाहर से एक push चाहिए होता है to think more. And he said कि सुशांत octagonal shape ही क्यों आ रहा है, rectangle भी आ सकता था, square भी आ सकता था. I said point है, थोड़ा octagonal पे काम करते हैं. और सवाल के जवाब उस क्षेत्र में ही होते हैं, आपको बस वो दृष्टि चाहिए होती है उसको ढूंढने की, और वो जवाब मुझे यहाँ मिला थोड़े से पुश के बाद. कैन एनीवन गेस ये कहाँ से है फोटोग्राफ? भोपाल. एंड हु इज़ दिस पर्सन? राजा भोज. तो राजा भोज ने एक 12th सेंचुरी में 11th सेंचुरी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेम्पल आर्किटेक्चर पे एक उनका काम है, सम्रांगण सूत्रधार. और इंटरेस्टिंगली सम्रांगण सूत्रधार के अंदर सर्कुलर टेम्पल्स का हमको एक पूरा चैप्टर दिखता है. और ये when we put all the plans, हमको एग्जैक्ट मदन मोहन का तो प्लान नहीं दिखता है इसमें से, बट आपको ये जरूर दिखेगा कि मदन मोहन का इन्फ्लुएंस कहाँ से निकल के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ शेप. बट अगेन द क्वेश्चन कम्स कि शेप्स अगर सम्रांगण सूत्रधार में सर्कुलर दे रखी है तो रेक्टेंगुलर भी दे रखी है, स्क्वायर भी दे रखी है, फिर भी वाई यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑक्टागोनल शेप? ब्रज इज द हॉटबेड ऑफ वेरियस संप्रदायस. आप शुरू करिए निम्बार्कियों से, निम्बार्क, वल्लभ, चैतन्य, इन सब ने ब्रज पे अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं. हर संप्रदाय में कॉस्मोलॉजी का एक अलग थ्योरी होती है, क्योंकि जो साधक होते हैं वो एक अलग लेवल पे जाके भगवान से संबंध जोड़ते हैं और उसमें एक अलग ज्योग्राफी और एक अलग मैप अपने दिमाग में सोचते हैं. गौड़िया आचार्यों ने वृंदावन को अष्टदल कमल के रूप में परिकल्पित किया. इट्स लाइक अ वृंदावन इज कंसीव्ड एज 8 पेटल लोटस, जिसके सेंटर में राधा कृष्ण बैठे हुए हैं. ये गौड़िया फिलॉसफी का बेसिक फंडामेंटल है. Even till date, if you go to any Gaudiya temple or whosoever is following the Gaudiya Vaishnavism, इस अष्टदल कमल को when I put with the plan all together, I am not claiming कि exactly यही है, but ऐसा नहीं है ये भी नहीं मालूम पड़ रहा. और हो सकता है कि फर्दर इस पे कोई एक व्यक्ति इसी सब्जेक्ट पे काम करे तो कुछ और आंसर मिल जाए. So somehow there were some dots which I was able to connect. Then the next question comes from the picture कि भाई आर्किटेक्चर, क्योंकि द टेम्पल्स, कई लोग इन टेम्पल्स को एक टर्म देते हैं मुगल टेम्पल्स. दे से कि दे आर नॉट ट्रेडिशनल टेम्पल्स व्हाट वी सी इन दी वास्तु टेक्स्ट और सम्रांगण सूत्रधार और मंडन टेक्स्ट, बिकॉज दे आर नॉट वेरी ट्रेडिशनल. दैट इवन आई विल अग्री. आपने स्पेसिस, यू हैव मार्क्ड स्पेसिस, देयर इज अ गर्भगृह, देयर इज अ अंतराल, देयर इज अ मुख मंडप, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ voids. Now the point comes about the ornamentation. This ornamentation you won't find in any temple. You will find basically human forms,
जो आपने देखा होगा, आपके दिमाग में खजुराहो आएगा, आपके दिमाग में उड़ीसा के मंदिर आएंगे, यहाँ वो चीज़ नहीं हुई है, जिसका आंसर डायलॉग ऑफ स्टोन गोविंदे में दे रखा है। बिकॉज आपके स्पॉन्सर्स वर मुगल्स, एंड मुगल्स में आइकोनोग्राफी उतना एक्नॉलेज नहीं की जाती थी। सो देयर द स्कॉलर्स, लॉट ऑफ स्कॉलर्स हैव गिवन दिस स्टेटमेंट कि मंदिर के एक्सटीरियर्स में एटलीस्ट ह्यूमन फॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। इट्स अ थ्योरी गिवन बाय द स्कॉलर्स, बट द पॉइंट कम्स, अगर वो भी नहीं दिया गया है तो ये कहाँ से आ रहा है? फतेहपुर सीकरी, फंतमुखी, पंचमहल, उसके बगल में एक तालाब है, गाइड बोलता है कि यहाँ पर बैजू बावरा और तानसेन का कंपटीशन हुआ था। अ वेरी टिपिकल गाइड एलिमेंट निकल के आता है वहाँ पर। खैर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टोरी, आई एम इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी नियर टू दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी। देर इज दिस पर्टिकुलर structure called Turkish Sultana's house. We don't know who this Sultana or Sultan or was, but Turkish Sultana house we find in the ASI records. इतना ख़त्म. Now thing is कि when I was writing about Madan Mohan, I made at least 3-4 visits to Sikri, Agra and other Mughal structures, because I knew when I am writing about architecture, I have to see those structures to understand the influence. I went 4 times. इसमें कई बार घुसा, ऐसे देखा और बाहर। बट एक बार इन द 5th ट्रिप व्हाट हैपेंड वाज, वी एंटर्ड इन दिस रूम एंड सडनली माई आईज वेंट ऊपर, क्योंकि 4 बार मैं ऐसे देख कर आ गया। मैंने कभी ऐसे देखने की जहमत नहीं उठाई। 5th टाइम मैंने सॉ लाइक दिस, मैंने बोला ये तो कुछ यूरेका मोमेंट है मेरे लिए। And somehow I was having the photograph of the Madan Mohan temple in my phone. I mean, you can see the similarity coming into the picture. The reason being because I am putting this Fatehpur Sikri with this is because Fatehpur Sikri में जितने भी masons थे, जो भी artisans थे, उनको अकबर ने literally push कर दिया उस पूरी टीम को वृंदावन कंस्ट्रक्शन के लिए। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आप सीकरी किसी को ले जाइए और वहाँ से उसको आँख में पट्टी बांध करके वृंदावन इस मंदिर के आगे खड़ा कर दीजिए, वो ये मान ही नहीं पाया कि मैं फतेहपुर सीकरी से बाहर आ चुका हूँ। टेम्पल्स आर सो सिमिलर इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। दिस इज द वन ऑफ द एरियल व्यू एंड यू कैन सी यमुना, हाउ फार यमुना हैज़ गॉन नाउ। यू कैन सी द टेम्पल टाउन ऑफ वृंदावन ऑल टुगेदर, और यमुना कितनी दूर जा चुकी है, जो कि बिल्कुल बगल में थी एक टाइम पर। एंड अगेन वी आर कमिंग बैक टू दिस पेंटिंग बिकॉज I have a very interesting story to tell with यमुना, बिकॉज एट टाइम्स हम नदी के रिलीजियस स्पिरिचुअल एलिमेंट की बात करते हैं, बट हमारे यहाँ अभी भी वो एक स्कॉलरशिप डेवलप नहीं हुई है कि नदी के इधर उधर हो जाने से एक पूरी ज्योग्राफी कैसे उथल पुथल हो जाती है और एक आर्टिस्ट का दिमाग कितना ज़्यादा बदल जाता है एक पेंटिंग को देखकर। तो यू कैन सी दैट रेड स्पॉट इज़ बेसिकली मदन मोहन, और वो उतना शिफ्ट हो चुकी है। और बीच में जो है आप एक पतली सी नदी, एक नदी या कुछ भी देख सकते हैं। बेसिकली इट्स अ इंडस्ट्रियल ड्रेन फ्रॉम कोसी। The chacha, the uncle is Thomas Daniel, the bhatija is William Daniel. And what is happening in 18th century Europe is ki, there is a movement, art movement developing in UK, and and also Orientalism is coming into the place. So the British painter wants new subjects to paint. कुछ नया पेंट करते हैं, क्या पेंट करें भाई? पूरा लैंडस्केप, आपने इंग्लिश लैंडस्केप पेंट कर दिया है, एडिनबरा, स्कॉटलैंड सब पेंट कर दिया। So now they want to go to those colonies where East India Company is ruling. And a lot of painters are coming to India as well. And the rule was that painter has to write an application to East India Company to grant the permission, and they will come to Calcutta. From there, they will do the work and come back to UK. That was the thing. The same thing Thomas Daniel did. He wrote a letter to the company. Company allowed him and came to Calcutta. And the day he landed in Calcutta, there is a letter which he is writing to one of his family member or colleague. He is saying that I may die. The temperature is so humid, I may die. I don't know whether I will reach England alive or not. But still he knows कि भाई पेट का सवाल है, कमाना है, खाना है, पेंटिंग करनी है, वरना तो वहाँ भूखे मरेंगे। So he starts with a advertisement to all the ज़मींदार्स. He says कि 12 गोल्ड मोहर पे मैं एक एक फोलियो पेंट करूँगा आपके लिए, only for ज़मींदार, exclusively for ज़मींदार्स. दैट फार्मूला गेट्स हिट। वो बोलते हैं एक अंग्रेज़ हमें पेंट करने आ रहा है, भाई क्यों नहीं पेंट करवाएंगे? बिल्कुल पेंट, 12 मोहर क्या है हमारे लिए, तुम 16 मांगो 16 भी देंगे। इट गेट्स पेंटेड एंड समहाउ दे गेट्स द फंड। इतने फंड मिल जाते हैं कि ये चाचा भतीजे की जोड़ी स्टार्ट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वोएज। ये अपस्ट्रीम ट्रैवल करते हैं गंगा से फ्रॉम कैलकाटा ऑल दी वे टू श्रीनगर। ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। एक तरफ दे ट्रैवल फ्रॉम गंगा, उधर से जाकर दे कम फ्रॉम यमुना,
और प्रयाग में आके फिर दोबारा ये पूरा, तो दोनों तरफ के दे हैव पेंटेड लैंडस्केप्स. आई थिंक दे हैव पेंटेड सम 130 प्लस लैंडस्केप्स, और उसमें एक वृंदावन भी आ जाता है पिक्चर में. दिस इज दैट पेंटिंग विच दे हैव पेंटेड फॉर वृंदावन. Now the twist in the story is कि ठीक है, they are painting the landscapes everywhere, well and right, no problem, but the point is कि if you just check those 130, 135 folios, I think till date, I mean, I am still very adamant about this comment which I am about to make. They have never ever painted one subject twice. हिंदी में बोल लेता हूँ, एक बिल्डिंग की 2 बार पेंटिंग नहीं बनाई है, किसी एंगल से भी नहीं बनाई. एक बिल्डिंग की 1 बार पेंटिंग, हो सकता है उन्होंने स्केचेस बनाए हों बट पब्लिश नहीं किए हैं एटलीस्ट. बट मदन मोहन के केस में ऐसा नहीं है. वी हैव 2 पेंटिंग्स कमिंग इनटू द पिक्चर, और वो 2 पेंटिंग्स किसी कारण से आ रही जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है. इफ यू कैन सी विजुअली, दोज हु हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट पेंटिंग्स, द वन विच इज ऑन द लेफ्ट इज एक्चुअली अ वाटर कलर पेंटिंग, द वन इज ऑन द राइट इज एक्चुअली एन ऑयल पेंटिंग. क्योंकि ऑयल पेंटिंग में यू पुट वार्निश, जो समय के साथ पीला हो जाता है, तो वो पीलापन जो आपको दिख रहा है वार्निश का पीलापन है. नाउ द अनदर फंडा विच कम्स इन द पिक्चर ऑफ पेंटिंग इज कि आप वाटर कलर पेंटिंग इंडिया के वेदर में जल्दी पेंट करके आगे बढ़ सकते हो. लाइक यू कैन सिट ऑन अ बोट, पेंट अ पेंटिंग एंड गो अहेड. बट ऑयल पेंटिंग आप पेंट नहीं कर सकते ट्रॉपिकल क्लाइमेट में दिल्ली के, क्योंकि आपका सारा ऑयल बह जाएगा कैनवास से. ये हो सकता है यूके में जाकर. नाउ व्हाई ही इज पेंटिंग द सेकेंड पेंटिंग इज Thomas Daniel later became the fellow of Royal Academy of Arts, which is the premier institute in UK to grant the fellowship to the painters. मतलब आपको रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स का फेलोशिप मिल गया, देन विच मीन्स कि आप पेंटिंग्स के एक टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच चुके. और वहाँ पर टू गेट द फेलोशिप यू हैव टू सबमिट एन आर्ट वर्क, एंड दिस वॉज हिज सबमिशन इन रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स. सो I don't know why he took Madan Mohan specifically, this landscape, this setting, but yes, Madan Mohan was responsible for granting fellowship to Thomas Daniel from Royal Academy of Arts. And this painting specifically अलग से है, ये पब्लिश नहीं हुई, ये खाली रिकॉर्ड में अलग से रखी हुई है. पेंटिंग का दौर एक और आता है, हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स पिक्चर में आते हैं, द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, एंड ही टेक्स अ पेंटर फ्रॉम कैलकाटा, बंगाल. हिज नेम इज सीताराम. सीताराम के साथ द प्रॉब्लम इज कि ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स, बट स्केल में थोड़ा गड़बड़ है. सीताराम की स्केलिंग इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. ही इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ पर्सपेक्टिव्स बेटर. मतलब कभी कुछ चीज़ जो बड़ी दिखनी चाहिए छोटी दिख रही है, छोटी बड़ी दिखनी चाहिए, बट स्टिल ही हैज़ डन अ पेंटिंग ऑन मदन मोहन. बट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस पेंटिंग इज, जो पीछे वाली पेंटिंग आपने देखी और जो ये वाली पेंटिंग आप देख रहे हैं, इन दोनों पेंटिंग के बीच में जो गैप है सिर्फ 30 साल का है. पर इस पेंटिंग में यमुना पूरी तरह से गायब है. इतना तो कोई पेंटर, मेरे हिसाब से सीताराम जैसा पेंटर बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो उसके पास ब्लू कलर खत्म हो गया, उसने ग्रीन पेंट कर दिया हो. सो पेंटिंग्स कितनी कहानी आपको बता रही है 33-40 साल के बीच की, आप वो देखिए उसमें. यू कैन कंपेयर 20 साल में 30 साल में यमुना कहाँ से कहाँ जा रही है. और ये 1970s का वृंदावन है, जब फ्लड में वृंदावन यमुना इस तरफ आया करती थी, और तब तक यहाँ पर रोड बनी नहीं थी. यमुना का जो बोलते हैं जो फ्लड प्लेन था और काफ़ी कच्चा था. हमने तो बातें सुनी हैं, फोटोग्राफ्स देखी, हमने तो ये वृंदावन अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा. और अभी ये हालत है, जो जिस जगह की मैंने फ़ोटो आपको दिखाई वहाँ पर ये कंक्रीट रोड आ चुकी है. आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पार्ट. ये तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो हु ही इज़. सर विंस्टन चर्चिल, हाँ, विनर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑल्सो अ विलन इन इंडियन हिस्ट्री दैट पॉइंट ऑफ टाइम, the culprit behind the Bengal famine, all those things. This is the palace built by, which is actually owned by the Churchills. इस पैलेस का नाम है ब्लेनहेम पैलेस. और इस पैलेस, ये पैलेस बेसिकली इज़ द ओनली पैलेस विच इज़ ओन्ड बाय अ नॉन रॉयल फैमिली इन UK. और इट्स अ यूनेस्को साइट which was granted by the royal family to the ancestors of Churchills. And Churchill was born here in this particular palace. Now the interesting thing is why this palace is coming into the picture is that बाद में in 18th century, 19th century, what happens is that one of his ancestors planned to what you say, इसको बोलते हैं ना, revamp करेंगे, थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा कुछ नया एडिशन करते हैं. सो उस टाइम पे द ट्रेंड इज वॉलपेपर्स. इंग्लैंड इज़ वर्किंग ऑन वॉलपेपर्स आ रहे हैं, और वॉलपेपर्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, आज की तरह नहीं गोवा फैक्ट्री और मिल गए. यू हैव टू लिटरली ब्रिंग अ आर्टिस्ट इन टू द पिक्चर. ही विल पेंट द वॉलपेपर फॉर यू एंड देन यू हैव टू पुट ऑन द वॉल. दिस इज पर्टिकुलरली अ रूम इन दैट पैलेस कॉल्ड इंडियन रूम.
और उस इंडियन रूम के कोने में आप कुछ देख सकते हैं, वहाँ मदन मोहन है उस कोने में। ये रिस्टोरेशन से पहले की पेंटिंग है, रिस्टोरेशन के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है अब। दे हैव डन अ वेरी गुड वर्क इन रिस्टोरेशन एंड द क्वेश्चन कम्स कि मदन मोहन कैसे आया यहाँ पर, एंड द आंसर इज अगेन चाचा भतीजे, because the person who was actually hired to design the wallpaper, उसको रेफरेंस चाहिए था भाई फ्रॉम हेवेयर टू स्टार्ट। अगर आप मुझे आज बोलें कि सुशांत आपको एक एयरपोर्ट डिज़ाइन करना, तो मैं पहली बार एटलीस्ट T3 तो चक्कर मार के आऊँगा, क्योंकि मेरे पास नियरेस्ट एग्जाम्पल वही है। They gave him the choice कि भाई we want something from Asia, and the only prominent work at that point of time was Thomas William Delans की paintings, and the whole wallpaper series was derived from these painting folios. That is the cover page. I don't know if book is still available or not, but I think some publisher published that. But anyways, I mean, I have just touched a few facets or untouched, or I should say some chapters of my book. But the point is कि you can see मंदिर एक बिल्कुल एज पर है और शहर पीछे इवॉल्व कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो एक स्कॉलरशिप का दौर जो चल रहा है, ख़ासतौर पे जो नौजवान आगे आ रहे हैं, जो मेरे कार्य के थ्रू जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ पक्ष, वो ये है कि मंदिर को या किसी भी बिल्ड स्ट्रक्चर को हमको उसके बिल्ड फॉर्म से इतर भी देखने के लिए एक लेंस अपनाना पड़ेगा। उस मंदिर की जो महत्ता उस स्थान विशेष के लिए सो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस मंदिर के दायरे कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे हम पत्थर मारते हैं तो पत्थर का रिपल इफेक्ट होता है, और रिपल इफेक्ट को हमको पकड़ने की आवश्यकता है। और उस श्रृंखला में एक गिलहरी की तरीके से मैंने काम किया है, और आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ब्रजवासी की तरफ से राधे राधे है। His book and presentation was like a deja vu for us, because us old timers at IGNCA, because he mentioned Govind Deva Dialogue in Stone, which is 96, Margaret H. case. So we had this Bridge Nath Dwara Prakalp when under the Kshetra Sampada program of Gyanpath Sampada, in which we were trying to explore the richness of traditions, multiple traditions of a particular geography, which is called Kshetra. So Bridge Nath Dwara was one Kshetra, and of course there was this Brihadishwara, Tanjavur, and then we were also doing something in Odisha, the Utkal Kshetra. So the arts of Kerala Kshetram and arts of Odisha, I think these have been published by IGNCA. Also, along with Margaret Case's book, we published in favor of Govind Devji historical documents relating to a deity of Vrindavan and Eastern Rajasthan by Monica Horseman in 1999. एंड चूँकि IGNCA एक मल्टीपल लेवल की रिसर्च करता है, जहाँ लोक और शास्त्र एक दूसरे से इंटीग्रेटेड मानते हैं हम लोग, तो इसमें जो भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि, ये दो ग्रंथ भी यहाँ से प्रकाशित हुए, जो कि क्षेत्र संपदा के अंडर ही आते हैं। तो इस प्रकार पूरा कैसे ये ब्रज और नाथ द्वारा, आप लोगों को अभी सुशांत ने बताया कि कैसे ये एक बेल्ट है पूरी जिसको हम देख रहे हैं। तो एक जर्नी, अच्छा ब्रिज के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं ना, तो ब्रिज का अगर संस्कृत वाले किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा इसका मतलब होता है घूमना, ब्रज। तो ये वो डीटी हैं जो घूमते रहते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना इनको अच्छा लगता है। तो हमको एक मथुरा भी मिलती है और हमको एक मधुरा नगरी भी मिलती है, मदुरई जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये अच्छा, हम खाली यहीं तक नहीं रहे, शास्त्रीय परंपरा तक नहीं रहे रूप गोस्वामी की। हमने इवनिंग ब्लॉसम्स द टेम्पल ट्रेडिशन ऑफ सांझी, इसके ऊपर भी एक पुस्तक प्रकाशित की। और जैसा आप लोग जानते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का एक अनुवाद, संपादन और अनुवाद डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी ने किया था 2 खंडों में, और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद डेविड हॉबरमैन ने छापा था।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पब्लिश हुई हैं। सुशांत ने डैनियल्स की बात की, थॉमस और विलियम डैनियल की, तो IGNCA ने इसके ऊपर भी एक प्रदर्शनी इन दोनों चाचा भतीजे की थी और इट वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड बहुत दिनों तक हमें ये रिक्वेस्ट आती रही कि हम उसका एक और प्रदर्शन करें। आपने राजा भोज भी दिखा दिए जो कि हमारा वीक पॉइंट है समरांगण सूत्रधार। IGNCA शायद आपने देखा होगा, IGNCA has published the Samarangan Sutradhar revised edition and translation of it in 5 volumes। तो इसमें इसकी विशेषता ये है इस ग्रंथ की कि ये थीमेटिकली रीअरेंज्ड टेक्स्ट है, क्योंकि जो टेक्स्ट पहले मिलता था जो बड़ौदा से छपा था, इसमें कुछ जैसे जैसे उनको पांडुलिपि मिली होगी, मैन्युस्क्रिप्ट मिली होगी, उन्होंने उसको एडिट करके छाप दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे लक्यूने थे, कॉन्टेक्चुअल एरर्स थी। उन सब एरर्स का संशोधन करके वो IGNCA ने छापा और अब ये एक थीमेटिकली रीअरेंज्ड टेक्स्ट है। तो यू कैन फाइंड अ लॉट मोर कोहेरेंस इन द टेक्स्ट इफ़ यू रेफर टू द समरांगण सूत्रधार ब्रॉट आउट बाय द IGNCA। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत शुभकामनाएं। अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर और आप सबका धन्यवाद।